A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, class, today we all are going to start our new chapter of your geography textbook, and the name of your chapter is Maps. So, I think you all heard about the term map uh, previously in your classes also you know about it very well. You studied about it, maps. So maps, we will talk about maps, different types of maps, how maps are useful, how maps are important to us, how different things are located in the maps. We will talk about it in this chapter. Okay, so after going through this chapter, after studying this chapter very well, you will able to know about the components of map, about the directions, about the different types of components, and even why maps are more useful than globe. In your one of your chapter is globe. You studied about the globe in your previous chapter, right? So how it is more important than globe, why we use maps instead of globe. Okay, so we will talk about it, we will learn about it, and after going through this chapter we will able to answer about the maps. Okay, so now first of all, just look at this picture given at a very starting off your chapter. This is the picture, a circle having some degrees. It is located here N, S, and some degrees are there, some pins are there. So anybody tell me what is this? What is this? Please do raise your hands. Yes, Dhananjay Modi, what is this beta? Ma'am, this is a compass. This is a compass. Very good, Dhananjay. This is a compass. Okay. So we use compass to find out the directions. Okay. So directions में जहां पे भी ये red mark वाला जो pen locate करता है, वो direction जो होती है आपकी north direction होती है. Okay. So now just look at this. Sorry. It's just look at this. No, this one is north, this one is south, this one is east, and this direction is west. So we will talk about it later on in this chapter very elaborately about the directions. Okay, so it is a compass, or you can say finding out direction. It is one of the most important component of the maps, which we will talk about later on this chapter. Okay, so now you have learned in the previous chapter about the advantages of globe. You all are very much aware about the globe. Globe is like globe is also called the miniature of the earth. ठीक है, एक छोटा सा आपका मिनिएचर है, अर्थ जैसा भी दिखता है. अर्थ सोलर सिस्टम में कैसे घूमता है, कैसे दिखता है, उसका मिनिएचर फॉर्म क्या है, आपका ग्लोब है. सो ग्लोब के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. हमें परफेक्टली लोकेशन का भी पता चलता है कि ग्लोब में कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है, वहां पे कौन से लैटिट्यूड्स हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हम अर्थ कैसे घूमता है, ये सारी चीजें जो है हम ग्लोब के थ्रू पता कर सकते हैं. एंड दीज आर लाइक सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब. बट however, globe has limitations as well. It has limitations too. It has drawbacks also. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns, and villages, it is of little help. Obviously, when we want to study the earth as a whole, we can use the globe. How we can locate the country,
we can find about the latitudes and longitudes, we can find about the position of a particular country, or you can say position about the continents in the globe. But if we want to study a part of the earth, for example, if we want to study about Rajasthan and its specific districts, we can't use globe टू फाइंड आउट, क्योंकि बहुत ही मिनिमम क्या होती है उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है ग्लोब में. बट इन मैप्स we can study about little things. If we want to study about country, we can study about country in a particular map. If we want to study about any particular state, for example Rajasthan, we can study about it in a particular map of Rajasthan. Districts, towns, villages, even if you want to study your locality wherever you live, आप क्या कर सकते हो? With the help of that map, with the help of the map of your locality, you can study your locality. Where is temple situated? Where is your home? Where is hospital? Where is school? How far a police station or a railway station from your house? आप ये सारी चीजें जो है आप अपनी एक लोकेलिटी के बारे में या फिर स्पेसिफिक जो भी आपको पढ़ना है उस मैप के थ्रू आप पढ़ सकते हैं. सो इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप्स. ओके, मैप्स का यूज करते हैं. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ मैप? एवरीवन प्लीज अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, underline this definition of map in your textbooks. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. A map is a representation. Representation means showing or drawing. ठीक है, मैप एक तरीके की ड्राइंग है. किसकी ड्राइंग है? अर्थ सरफेस की. कि अर्थ सरफेस को हमने क्या कर रखा है, एक फ्लैट अर्थ अगर हम अर्थ की रियल शेप वगैरह देखें तो अर्थ की शेप जो है स्फेयर जैसी है. ठीक है, जियोइड बोलते हैं वैसे अर्थ की शेप को. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है. बट मैप क्या है? मैप अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ की ड्राइंग है. किसमें? एक फ्लैट सरफेस पे. फॉर एग्जांपल एक पेपर पे, दिस इज अ पेपर, और उसमें हमने क्या रखा है, ये हमने ड्राइंग बना रखी है. ये हमने अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको ड्रॉ करके रखा है. अकॉर्डिंग टू ए स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग होता है. स्केल मींस जैसे आप स्केल का यूज करते हो ना, आप वी यूज स्केल्स इन स्पेशली इन मैथमेटिक्स टू ड्रॉ अबाउट, इफ यू वांट टू ड्रॉ 2 centimeters, you use scale to draw 2 centimeter, right? So scale, we will talk about scale elaborately. It is one of the component of the map in our further chapter. But right now हम स्केल्स को यूज करते हुए, ऐसे नहीं कि जैसा मन आया हमने वैसे ड्रॉ कर दिया. हम स्केल्स का यूज करते हैं और उसके थ्रू हम मैप जो है अर्थ का एक अर्थ की एक ड्राइंग है, अर्थ सरफेस की एक ड्राइंग है जिसको हमने एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करके रखा है. दैट इज नोन एज मैप. ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज अ मैप. इट इज अ रिप्रेजेंटेशन of a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Scale के according अर्थ surface का जो flat surface पे drawing है उसे हम map कहते हैं. But it is impossible to flatten a round shape completely. Obviously, the shape of the earth is, the real shape of the earth is round or sphere, कुछ भी बोल दीजिए, एक बॉल के जैसी shape है. I suppose you all have seen ball in your life, right? You have played with it. Obviously, सबने खेला होगा. So this is the shape of round, sphere और ball like shape. तो अब इसे obviously flat करना बहुत ही मुश्किल है. अगर आप try कीजिए, let's take an old rubber ball and draw whatever you like all over it. ठीक है, एक बॉल ले लीजिए और उसमें जो भी पसंद है वो आप पूरे बॉल में ड्रॉ कर दीजिए.
यू मे ऑल्सो मार्क नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी उसमें क्या कर दीजिए, आप ड्रॉ कर दीजिए। आफ्टर दैट उसमें जो जो आपको मन कर रहा है अपने वहां पे क्या कर दिया, उसको ड्रॉ कर दिया। देखो मैं स्क्रीन में कर रही हूँ ना, एग्जाम्पल ले लो। उसके बाद क्या करो, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टेक अ नाइफ एंड कट इट, ठीक है, कट कर दीजिए। कट किया आपने, कट करने के बाद इसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप प्रेस करोगे तो नोटिस हाउ ड्राइंग्स आर डिस्टॉर्टेड, जो ड्राइंग्स है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा फैल जाएगी, डिसऑर्टेड सी हो जाएगी। सो ऐसा ही क्या होता है, अर्थ सरफेस के साथ भी होता है। अर्थ की शेप जो है राउंड है, बट उसे जब हम फ्लैट सरफेस एक पेपर पे बनाते हैं या फ्लैट सरफेस पे देखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ओके, सो we find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. मतलब एक जो मैप है आपको स्मॉल एरिया के बारे में बता पाता है, एक छोटे से एरिया के बारे में बता पाता है, और उसकी कुछ रियलिटीज कि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे पार्क है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा घर है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे स्कूल है। तो छोटी छोटी चीजें और रियलिटीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। Another map may contain as many facts as a big book. और हो सकता है एक मैप है जो एक बहुत बड़ी सी बुक में जितने फैक्ट्स होते हैं ना, सपोज एक स्मॉल एरिया मतलब आपने एक लोकेलिटी के बारे में देख लिया, उसके बाद आपने एक बड़ा सा मैप लिया जिसमें आप बीकानेर के बारे में जान रहे हो। When many maps are put together we get an atlas. और जब बहुत सारे मैप्स जो हैं साथ में हम रखते हैं ना, जिस बुक में होते हैं उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। सपोज देखिए एक आपकी बुक है, उसके अंदर क्या है, आपके पास बीकानेर का भी मैप है, फिर आपके पास उदयपुर का भी मैप है, राजस्थान का पूरा मैप है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो ऐसे करते हुए एक पूरी बुक बन जाती है। तो उस मैप की बुक को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट बुक एन एटलस। क्या बोलते हैं हम, एटलस बोलते हैं। So atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Atlas भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, उसमें जो मेजरमेंट्स भी लिए हुए होते हैं वो भी डिफरेंट मेजरमेंट। मतलब जब आप किसी को स्केल डाउन करते हो, ड्रॉ करते हो, जैसे कि आपने सपोज एक स्केल लिया, स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर को आपने कंसिडर कर दिया 1 किलोमीटर, कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। वही दूसरे मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर भी हो सकता है। तो मैप्स भी अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट से ड्रॉ किए हुए होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ऑब्वियसली मैप हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इफ वी कंपेयर इट टू द globe. They are of different sizes. Some of them are described below. Okay, so now in your textbook 3 types of maps are given. We will talk about it. So the first one is physical map, second one is political map, and the third one is thematic map. Okay, so 3 types of maps are there: physical map, political map, and thematic map. Now one by one we studied about each type of map elaborately. So maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical map or relief map. Relief map, it is the another name for physical map. Physical map जो क्या होता है फिजिकली, जो फिजिकली मतलब कि अगर हम किसी एरिया को देखते हैं तो उस एरिया में क्या दिख रहा है हमें। सपोज हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में हमें मिट्टी बहुत ज्यादा दिखती है, धोरे दिखते हैं, सैंड ड्यून्स दिखते हैं। तो ये अर्थ का क्या है, एक नेचुरल फीचर है, राजस्थान का ये नेचुरल फीचर है, ठीक है। तो ऐसा मैप जिसमें आपके अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है, उन मैप्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप और रिलीफ मैप बोलते हैं। Okay, so now I am going to showing you a picture of physical map. Give me a second. Now just look at the screen. This is the picture of physical map.
Now, this is the physical map of India. In this map, what you are able to see, you all are able to see the physical features of India. कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, प्लेन एरिया कहाँ पे है, डेजर्ट एरिया कहाँ पे है, माउंटेन्स कहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, और प्लेटूज कहाँ पे है, कुछ कुछ रिवर्स, इस रिवर्स के बारे में कि यहाँ से रिवर्स जो है फ्लो करती है, इस मैप में ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट है. नाउ जस्ट लुक एट दिस मैप, दिस वाइट और ग्रे एरिया जो आप लद्दाख, हिमाचल वगैरह की साइड में देख रहे हो, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस. यहाँ पे क्या है, आपके बहुत सारी माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. आफ्टर दैट नाउ जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे भी क्या है, माउंटेन्स हैं, बट यहाँ पे स्नो बहुत कम सी आती है, ज्यादा नहीं आती. देन ये वाला एरिया, यहाँ पे आपका सैंड ड्यून्स हैं. फिर ये वाला देखो, बहुत सारी ग्रीनरीज हैं, ये सारी जो भी ग्रीन एरिया देख रहे हो, जहाँ पे डार्क ग्रीन देख रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और जहाँ पे लाइट देख रहे हो वहां पे डेसिडियस फॉरेस्ट है, या फिर थोड़े मतलब कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं है, ठीक है, कंपेरेटिवली. सिमिलरली ये ब्राउन एरिया देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि ज्यादा ग्रीनरी नहीं है, प्लेटू रीजन है. ये सारी चीजें आप क्या करते हो, एक मैप में देखते हो. ये जो ऑरेंज ऑरेंज ये सॉरी ब्लू देख रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अब अगर आप इलेबोरेटली इस मैप को देखोगे ना, जस्ट लेट मी जूम इट आउट फॉर यू. ये देखिए, एक पतली पतली आप ब्लू कलर की लाइंस देख रहे होंगे, ठीक है. ये देखो, जैसे ये वाली, ये देखो, बहुत सारी आप ऐसे ब्लू ब्लू बहुत ही पतली पतली लाइंस देख पा रहे हो. तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स, ठीक है, कि कौन कौन सी रिवर्स है. ये देखो, ये देखिए, ये सुंदरबंस डेल्टा है, ये वाला, ये आपका सुंदरबंस डेल्टा है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये क्या है, फिजिकल फीचर, फिजिकल मैप है, और यू कैन से रिलीफ मैप है. तो रिलीफ मैप, फिजिकल मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलीफ मैप या फिर फिजिकल मैप आप अर्थ के फिजिकल फीचर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज पॉलिटिकल मैप. What is this? Political maps. So what do you mean by political maps? Maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. ऐसे मैप्स जिसमें हम डिफरेंट सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को, स्टेट्स को, या फिर वर्ल्ड के डिफरेंट स्टेट्स को उनकी बाउंड्रीज के साथ में जब देखते हैं, उस टाइप के मैप्स को हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं. सो मैप विच शोज अस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज, states of the different countries, states of the world, and specifically with their boundary. Those types of maps are known as political map. Now just look at the picture of the political map. Just look at the picture of the political map. Now this is the map of India. This is the political map of India, which is representing the neighboring countries of India and the states of India, states and union territories of India. Now specifically अब यहाँ पे रिवर्स हमें नहीं, हमने फिजिकल मैप में देखा कि वहां पे ग्रीनरी, हमने देखा माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, ये सारी चीजें हमने देखी कि उस फिजिकल मैप में रिवर्स, इन सब के बारे में देखा. बट पॉलिटिकल मैप में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स को देखेंगे कि स्टेट की कौन सी बाउंड्री है. जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो राजस्थान का एरिया कहाँ तक का एरिया जो राजस्थान का है, तो ये आप येलो कलर पूरा देख रहे हो, ये पूरा आपका क्या है, राजस्थान है. और ये देखो, ये बाउंड्रीज बनी हुई है, तो ये क्या है आपका, ये आपका राजस्थान है. सो द मैप शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स और स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, countries,
स्पेसिफिक सिटीज, देखो ये राजस्थान है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है तो उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से यूनियन टेरिटरीज, तो वो क्या होता है, उस टाइप के मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ओके, so now just look at the third type of map, that is thematic map. Thematic map focuses on specific information. Okay, some maps, for example, we want to know about only the types of soil present in India, we will use the thematic map जो हमें एक स्पेसिफिक सॉइल टाइप्स कोई क्या करेंगे वो बताएंगी। या फिर हमें रिवर मैप का देखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिवर्स फ्लो करती है, तो we will use thematic map because that particular map is providing us the specific information about the roads हो गया, rivers हो गए, उन्हीं के बारे में बता रहा है। So some maps focuses on specific information, एक specific किसी particular चीज के बारे में ही, specific मतलब कोई particular कोई चीज हो गई ना, उसके बारे में ही बता रहा है, such as roads, road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. These are known as thematic maps. ऐसे maps को हम क्या बोलते हैं, ऐसे maps को हम बोलते हैं thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. जो भी information हमें चाहिए उसके according हम उनको क्या है एक name दे देते हैं, उनको हम thematic map नहीं बोलेंगे। For example, I want to know about the national parks of India, then I will give them the title about national parks of India या फिर map of national parks, तो या फिर national parks of India map। मैं क्या करूंगी, एक suitable title दे दूंगी उस मैप को। Now just look at the example of this particular type of map also. So class, just look at this. I gave the suitable title, India National Parks. Okay, I gave the suitable title to this map, and in this map, what we are able to see, we all are able to see about the national parks of India. Where are the famous national parks of India located? Now look at some examples. Look at the examples. Ranthambore, देखिए Ranthambore, Sariska, Shivpuri, सायपुर, गर, ठीक है, काजीरंगा, सिरोही, दीज आर लाइक स्पेसिफिक, ये क्या बता रहा है कि कौन से स्टेट में कहाँ पे हमारा जो है कौन सा नेशनल पार्क है, इसके बारे में ये मैप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मैप इज नोन एज thematic map. When any map providing us any specific information about anything, फॉर एग्जाम्पल रोड्स का हो सकता है मैप, वो नेशनल पार्क्स का हो सकता है, रेनफॉल का हो सकता है कि इंडिया के कौन से स्टेट में या वर्ल्ड के कौन से स्टेट में रेनफॉल जो है कैसा रहता है उसके बारे में बता सकते हैं। क्लाइमेट का हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी एक पर्टिकुलर, कोई भी हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जब हम कोई पर्टिकुलर मैप यूज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो उस टाइप के जो मैप्स हैं उसमें हम थीमेटिक मैप्स का यूज करते हैं, ठीक है। एंड वी गिव द सूटेबल टाइटल्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट कि हमें क्या देखना है, नेशनल पार्क है वो या फिर रोड मैप है वो, रिवर मैप है वो, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So there are three components of maps, that is distance, directions and symbols. So we will talk about the components of maps elaborately in our next class. Okay, so this is all about today. Go through this chapter, read this chapter very carefully.
यहाँ तक हमने पढ़ा है ना, till the component, there are 3 components of map: distance, direction and symbol. So you all are supposed to read the chapter till here, and if you face any kind of problem or if you are having any kind of doubt, do let me know. You can ask me in my next class about your doubts. Okay, so thank you so much everyone for joining the class. Enjoy your day and be safe. Take care.